Hello students, this is lesson number 6. This is Jodie's Fawn. Marjorie Keenan Rawlings. So here is a glossary of this lesson. Fawn, a young deer, pupil, black circular opening in the center of the iris of the eye, dilated, enlarged, recollect, remember, acorns, small brown nuts, ungrateful, thankless, unappreciative, mounted, rod, abandoned, left, gave up, scrub, undergrowth, buzzard, a large carnivorous bird, scrawny, thin, lanky, bow, large branch of a tree, adjacent, nearby, carrion, dead body, parted, moved or pushed aside, clagged, made a light, sharp noise, startled, surprised, quivering, shaking slightly, delirious, extremely excited, convulsion, shiver, sleek, smooth and shiny, limpy, weakly, unsteadily, hoist, raise, lift, bleat, cry of a goat or sheep, skirted, went round, thicket, dense growth of shrubs and underbush, prickling, a small hard pointed outgrowth of the epidermis of a plant, vine, a weak stem plant that derives its supports from climbing, twinning or creeping along a surface. Intersection, junction, crossroads, dangling, hanging, swaying, wobbling, unsteady, fondle, touch, gently pet, caress. Romp, play, alarm, frighten, fumble, felt round, grope, latch, a bar with catch and lever used as fastening for a door, gate, etc. Clearing, glade, a piece of land, bulk, disobeyed, unwilling to do, skim, remove, floating, matter from liquid, milk, gourd, bottle made from the dried shell of water, gourd. Precariously, insecurely, dangerously, frantically, furiously, butted, knocked, poked, snorted, made a rough, noisy sound by breathing forcefully through the nostrils, ecstasy, delight, bliss, flicked, jerked, swayed, swill, spin, twist, juggling, bubbling. Now phrases and idioms. Drift back to, go back to, a close shave, a narrow escape, keep one's head, stay calm in a difficult situation, hemmed in, caught in a situation where one cannot say no, sidled back, walked back quietly, trying not to be noticed, every which way in different directions makes a bearing, act as a compass and helps to identify direction, a china deer, a clay deer that is easily broken, get one's breath, rest until breathing is normal, light-headed, unable to think clearly because of joy or excitement, thrust into, push into, back and forth in one direction and then in the other repeatedly. Here is a summary. In this story, Jodie's father is beaten by a rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. इस स्टोरी में जोडी के फादर को जो है एक रैटल स्नेक ने काट लिया होता है. ही क्विकली किल्स अ डोई, मतलब वो मीन्स एंड यूजेस हिज हार्ट एंड लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. मतलब वो डोई को वो उसे मीन्स किल कर देते हैं और जो उनका हार्ट और लिवर है उसमें से पॉइजन निकालना मीन्स वो स्टार्ट करते हैं. जोडी वॉन्डर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट इट्स मदर. जोडी सोचता है कि अगर उसके डैडी को कुछ हो जाता है तो उसकी मम्मी के साथ वो अकेला मीन्स छोटा सा रह जाएगा तो वो क्या करेगा. जोडी कुड नॉट फॉरगेट द इंसिडेंट. ही लव्ड द लिटिल फॉन. हिज फादर पेनी ले इन बेड. मतलब जोडी जो है वो इंसिडेंट कभी नहीं भूलता. हिज फादर पेनी ले इन बेड, और उसके पापा जो है पेनी मीन्स आना, पैसे जो होते हैं वो हमेशा बेड पे छोड़ते हैं, उसके लिए रखते हैं. जोडी इंक्वायर्ड आफ्टर हिज हेल्थ, और जोडी जो है उनकी हेल्थ के बारे में मीन्स पूछताछ करता है. पेनी सेड ही हैड एस्केप्ड डेथ नैरोली. ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज सन फॉर हिज हेल्प. ही ओन्ड हिज लाइफ टू द शी डीर
or the doe whom he had killed to press out the snake poison in his body. मतलब वो अपने बेटे पर बहुत प्राउड फील करते हैं, और वो शी डीर और डोई जो उनकी हेल्प करते हैं, जो उन्होंने उनके प्रेस करने में हेल्प की थी, स्नेक का पॉइजन उनकी बॉडी में से निकालने में उनकी मदद की थी. जोडी वॉज वरीड अबाउट द लिटिल फॉन, और जोडी जो था वो लिटिल फॉन के बारे में काफ़ी परेशान था. ही वॉन्टेड टू फाइंड द फॉन एंड ब्रिंग इट होम, और वो चाहता था कि वो फॉन को ले आए और उसे घर ले आए. पेनी अलाउड द बॉय टू सेव द लिटिल एनिमल, और पेनी उसे अलाउ करता है कि अलाउ द बॉय टू उस छोटे से एनिमल को बचाने के लिए. इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव द फॉन टू स्टार्व, मतलब ये अच्छा नहीं होगा, अप्रिशिएबल नहीं होगा कि अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें मीन्स भूखे रहने के लिए. डॉक विल्सन ऑल्सो सपोर्टेड जोडी, और डॉक विल्सन थे वो भी सपोर्ट कर रहे थे जोडी को. Jody decided to go to the forest with Millville in search of the fawn. He hoped to be back home for dinner. मतलब जोडी डिसाइड करता है कि वो फॉरेस्ट में जाएगा, मीलविल में जाएगा और सर्च करेगा फ़ोन को, और वो सोचता है कि जब डिनर का टाइम होगा तब तक वो घर आ जाएगा. द टू रोड आउट. जोडी हैड अ वेग आइडिया ऑफ द प्लेस वेयर हिज फादर हैड बीन बाइटन बाय द स्नेक. जोडी को एक आइडिया आता है कि जहाँ पर जो वो स्नेक ने उन्हें काटा था वो उसी प्लेस पर जाए. तो द बुशेस देयर वर अ थिक, जो वहाँ की बुशेस थी वो काफ़ी थिक थी. सो ही प्रपोज टू गो ऑन फुट, तो वो ऐसा सोचता है कि वो मीन्स चलते हुए जाएगा. द ट्विग्स अंडर हिज फीट क्रीक्ड एंड ब्रोक द साइलेंस. जो उसके पैरों के नीचे जो छोटे छोटे जो ट्विग्स आते हैं वो टूटने की आवाज़ होती है, और साइलेंस जो है जंगल का, फॉरेस्ट का, वो खत्म हो जाता है, ऐसे आवाज़ आती है. सडनली ही सॉ लार्ज वल्चर लाइक बर्ड फ्लाइंग इनटू द एयर. वहाँ पर वो एक वल्चर को देखता है जो कि फ्लाई करता हुआ. सून ही फाउंड दैट मैनी सच बर्ड्स वर फीडिंग ऑन द डेड बॉडी ऑफ द डोई. मीन्स वहाँ वो जाके देखता है कि काफ़ी सारे दूसरे सारे बर्ड्स भी आ जाते हैं जो कि डेड बॉडी, डोई की जो डेड बॉडी है वो लोग उसे खाते हैं. थ्रू ही स्टिक एट देम टू कीप देम अवे, और वो स्टिक से उन्हें मीन्स भगाता है. द इंसिडेंट हैड अकर्ड ओनली 24 आवर्स अगो, और ये इंसिडेंट कुछ 24 घंटे के पहले हुआ. ही वेंट राउंड बट डिड नॉट फाइंड द फॉन. वो वहाँ पूरा घूम के आ जाता है पर वहाँ पर उसे फॉन नहीं मिलता. इवन द फुटप्रिंट्स ऑन द ग्रास हैड बीन वॉश्ड अवे इन द रेन, और जो फुटप्रिंट्स भी थे वो बारिश की वजह से धुल जाते हैं. जस्ट देन ही वॉज स्टार्टेड टू सी द फॉन लिफ्टिंग हिट्स फेस. It was shaking. Jody walked up to it and put his arms around its body. मतलब वो देखने की कोशिश करता है उसका फेस उठा के और उसे शेक करता है. जोडी जो है अपने हाथ पे उसकी बॉडी को रखता है. इट्स स्किन वॉज सॉफ्ट एंड क्लीन, और उसकी जो स्किन थी वो काफ़ी क्लीन और सॉफ्ट थी. इट डिड नॉट किक नॉर ब्लीड. ही सेव्ड इट्स फेस फ्रॉम द थॉर्नी प्लांट्स. वो थॉर्नी प्लांट्स में से उसका फेस जो है वो बचा लेता है. ही पिक्ड इट अप एंड वॉकड एज फास्ट as he could until he came to the intersection with the road home. और वो जल्दी से जल्दी घर आ जाता है. When he tired, he sat it down and rested for a while. और वो थक जाता है और थक के बैठ जाता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है. He again carried it on his arms to some distance. उसे वो अपने हाथों पे रखता है और कुछ दूर तक. Finally he reached home and took the phone into his father's room. और फाइनली वो घर पहुंच जाता है और फ़ोन को अपने फादर के रूम में रख देता है. पेनी वॉज ग्लैड टू सी इट, और पेनी जो है काफ़ी खुश हो जाता है. जोडी गेव इट टू मिल्क टू ड्रिंक, और जोडी जो है उसे वो दूध देता है पीने के लिए. ही डिप्ड हिज फिंगर्स इनटू द मिल्क एंड लेट इट सक. और वो उसकी उंगलियां जो है वो मिल्क में डाल के फिर उसे सक करने के लिए देता है. देन ही ड्रैंक ऑफ द लास्ट ड्रॉप ऑफ मिल्क, और पूरा एंड तक वो मिल्क जो है वो फिनिश कर देता है. जोडी वॉज हैप्पी नाउ. जोडी काफ़ी खुश होता है. So here is the summary of this lesson. This is Jody's fawn.